السلام علیکم لسنرز، آئیے لفظوں کے جادوگر اور معاشرے کے جراح محی الدین نواب کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ وہ ایسی عورت تھی کہ ادھر شہید ہوئی، ادھر پوری دنیا پر سکتہ طاری کر دیا۔ ازل سے بولتی ہوئی دنیا کو چند لمحوں کے لیے صحیح چپ کر دیا۔ آئندہ وقت بولے گا۔ لو وہ گئی مگر مری نہیں۔ ابھی تو بے گناہوں کی شامت آ رہی تھی۔ انتقام کے جوش میں جدھر منہ پڑ رہا تھا ادھر گولیاں چلائی جا رہی تھیں، جلاؤ گھراؤ شروع ہو چکا تھا، دکان لوٹی جا رہی تھیں، بسوں، ویگنوں، ذاتی گاڑیوں، بینکوں اور پیٹرول پمپ وغیرہ کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ مرد، عورتیں اور بچے سبھی پیدل ہو گئے تھے۔ اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے کوئی کھدا گاڑی بھی نہیں مل رہی تھی۔ ایسے وقت اریمہ فیکٹری سے باہر آئی۔ حالات نے سمجھا دیا تھا دہشت گردوں کو موقع مل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک تخریبی کارروائیاں ہوتی رہیں گی، اس لیے تمام دفاتر بند ہو گئے تھے۔ مینیجر نے اریمہ اور دوسری عورتوں سے کہا، تم سب فیکٹری میں رات گزارو، باہر گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہماری گاڑی تمہیں چھوڑنے نہیں جائے گی۔ ایک خاتون نے کہا، ہم نہ گئے تو بچے پریشان ہو جائیں گے۔ ایک لڑکی نے کہا، میری امی دل کی مریضہ ہیں، ان کا بائی پاس ہو چکا ہے، ایسے حالات میں گھر نہیں جاؤں گی تو وہ روئیں گی، ان پر جان لیوا دورہ پڑ سکتا ہے۔ انہیں فون کرو، اپنی خیریت بتاؤ، انہیں تسلیاں دو، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لڑکی نے کہا، میرے گھر میں فون نہیں ہے اور پی سی او گھر سے دور ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، مجھے ہی کسی طرح بھی جانا ہوگا۔ وہ روتی ہوئی آنسو پوंچھتی ہوئی چلی گئی۔ کتنی ہی عورتیں دو دو چار چار کی ٹولیوں میں یہ کہتی ہوئی فیکٹری سے نکلیں کہ گلی کوچوں سے ہوتی ہوئی کسی طرح گھر پہنچی جائیں گی۔ اریمہ نے مینیجر شاہد بابر کے پاس آ کر کہا، آپ تو گاڑی میں جائیں گے، مجھے کسی ایسی جگہ ڈراپ کر دیں جہاں سے کوئی بس یا ویگن مل سکے۔ شاہد بابر نے ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا، تم تو بڑھیا کرتی تھیں، ذرا نزدیک نہیں آنے دیتی تھیں، تم نے پارسا بن کر مجھے بہت باتیں سنائی تھیں، یاد کرو ایک دفعہ جب میں تمہارے نزدیک آیا تھا، اب رات کے وقت میرے ساتھ جاؤ گی تو تمہاری پارسائی کہاں جائے گی؟ وہ بولی، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسی افراتفری میں انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے، اور آپ؟ وہ بات کاٹ کر بولا، یہی تو میں تمہیں سمجھاتا آیا ہوں، آج بھی تمہارے کام آؤں گا، تم بھی میرے کام آؤ۔ وہ اس کی نیت کو خوب سمجھ رہی تھی، طنزیہ انداز میں بولی، آپ میرے باپ جیسے ہیں، بیٹی سے جو کام چاہیں لے سکتے ہیں۔ وہ ایک دم سے بپھر کر بولا، یو شٹ اپ، تمہارے کہنے سے میں باپ نہیں بن جاؤں گا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بجانا نہیں چاہو گی تو ساری رات یہاں نائٹ شفٹ والوں کے ساتھ گزارو گی۔ وہ بولی، کچھ بھی ہو، اب تم سے مدد نہیں مانگوں گی۔ پھر اس نے میز پر تھوک کر کہا، اطمینان قلب کے لیے ایک جوان لڑکی کا تھوک چاٹتے رہو۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دھاڑتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ، تم نے اپنی روزی کو خود لات ماری ہے، کل سے یہاں آ کر اپنی منحوس صورت نہ دکھانا۔ وہ انٹرکام کا بٹن دبا کر کیشیئر سے بولا، اریمہ کا حساب چکتا کرو، جو تنخواہ بنتی ہے ابھی دو اور اس کی چھٹی کرو۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتی ہوئی اس آفس سے نکل کر کیشیئر کے پاس آئی، پھر اپنے واجبات وصول کر کے فیکٹری سے باہر آ گئی۔ پارسائی کے جرم میں جیسے تھکے کھا کر باہر آئی تھی۔ آس پاس حد نظر تک ویرانی اور سناٹا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں دو چار لوگ ادھر سے ادھر جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ تنہا کیسے جائے گی۔ اس کا گھر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہ 2 بسیں بدل کر تقریباً 2 گھنٹے میں وہاں پہنچتی تھی۔ اس وقت پیدل ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں گولیاں چل رہی تھیں اور کن علاقوں میں وارداتیں ہو رہی تھیں۔ ایسے حالات میں ایک جوان لڑکی صحیح سلامت اپنے دروازے تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یہ مسئلہ ازل سے ہے، امن و امان ہو یا ہنگامی حالات ہوں، لڑکیاں ہر حال میں چھینی جھپٹی جاتی رہتی ہیں۔ ایک کار کی ہیڈ لائٹس اس پر پڑنے لگیں۔ وہ ایک طرف ہو گئی۔ فیکٹری کے مینیجر شاہد بابر کی کار تھی۔ بڑا سا آہنی گیٹ کھل رہا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھتی ہوئی اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے اگلی سیٹ پر سائمہ کو مینیجر کے ساتھ دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز میں سے دیکھتا ہوا کار ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ اسے اپنی حوث کا پیٹ بھرنے کے لیے وہاں کام کرنے والی ایک جوان بیوہ مل گئی تھی۔
पीछे रह जाने वालों पर जो गुजरती है वो अरीमा के दिल पर गुजर रही थी। इंसानों की दुनिया में बुरा वक्त आने पर कोई साथ नहीं देता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेन रोड की तरफ जाने लगी। आगे पीछे दूर तक तन्हाई और नीम तारीकी डरा रही थी कि किसी भी लम्हे उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसने सहमी हुई चाल चलते हुए तकरीबन 50 मीटर का फासला तय कर लिया। 10-15 मीटर आगे एक शाहराह थी। दूर ही से इसे इक्का दुक्का गाड़ियाँ उम्मीद की किरण की तरह गुजरती हुई दिखाई दे रही थीं। वो दिल को समझा रही थी कि घर पहुंचने के लिए कोई बस या वैगन मिल सकती है। सड़क के किनारे पहुंचते ही वो चीख मारकर लड़खड़ाती हुई औंधे मुंह गिर पड़ी। एक दिल दहला देने वाला बम धमाका हुआ था। यूँ लगा जैसे करीब ही बम फटा हो और इसके चीथड़े उड़ गए हों, मगर वो जिंदा थी। हालत ऐसी हो गई थी कि उठने की सकत नहीं रही थी। सर से पांव तक पूरी तरह लरज रही थी। इसने सर घुमाकर देखा। जिस फैक्ट्री से वो निकल कर आई थी वहाँ आग और धुएं के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे दुकानों के पास जो लोग थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कोई किसी गिरने पड़ने वाले को नहीं उठा रहा था। सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। वो किसी हद तक संभलने की कोशिशें कर रही थी। थर-थर कांपती हुई वहाँ से उठना चाहती थी। ऐसे ही वक्त एक गाड़ी तेज़ी से आकर उसके बिल्कुल करीब रुक गई। गाड़ी के अगले पिछले दरवाजे खुल गए। वो अपने हवासों में नहीं थी, वहाँ से उठ रही थी। 2 अफराद ने इसे माले गनीमत की तरह उठाकर अगली सीट पर डाल दिया और ख़ुद पिछली सीटों पर जाकर बैठ गए। दरवाजे बंद हो गए। देखते ही देखते वो गाड़ी स्टार्ट होकर रफ्तार बढ़ाती हुई वहाँ से जाने लगी। कहाँ जाने लगी कोई नहीं जानता। खुशनसीबी या बदनसीबी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। नागहानी उस्ताद आ पड़े और कुछ समझ में ना आए तो कभी याद ना आने वाला खुदा याद आता है। बंदा आजिज़ और मजबूर होकर अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहता है कि इस माबूद को जो मंजूर है वही होता रहेगा। ऐसे वक्त बचाव का एक ही रास्ता रह जाता है कि आयतें कुरानी पढ़ी जाएं। उसने ज़ेरे लब पढ़ते हुए कार चलाने वाले को देखा। वो एक नौजवान था। चेहरे की सख्ती बता रही थी कि बेरहम है और गुस्से से भरा हुआ है। फिर इसने सर घुमाकर पिछली सीट की तरफ देखा तो होश उड़ गए। वहाँ 3 अफराद बैठे हुए थे। इनमें एक के पास रिवॉल्वर और दूसरे के पास क्लाशिनकोव थी। कुछ समझाए बगैर समझ में आ गया कि वो दहशतगर्दों के चुंगल में फंस गई है। खौफ और दहशत से जान निकली जा रही थी। कुछ बोलने के लिए मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसने बमुश्किल रोने के अंदाज में इल्तिजा की, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक ने रिवॉल्वर का रुख इसकी तरफ करते हुए कहा, मुंह से आवाज़ निकालेगी तो मरेगी। खिड़की का शीशा ना उतारना, बाहर किसी को इशारा ना करना। गाड़ी चलाने वाले जवान ने गियर बदलते हुए कहा, जिंदा रहना चाहती हो तो वही करो जो ये कहते हैं। मैं भी यही कर रहा हूँ। अरीमा ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। अगरचे वो गुस्से में था मगर जैसे सब्र ज़ब्त से काम ले रहा था। सख्त लहजे में बोल रहा था, मैं भी इनके रहमो करम पर हूँ। इन्होंने हमें आगे बिठाकर गन पॉइंट पर रखा है। अरीमा ने गहरी सांस ली। ये अजीब सा सहारा मिला कि डूबने वाली कश्ती में वो तनख्वाह नहीं है। एक अजनबी साथ डूबने या साथ उभरने के लिए मौजूद है। इस अजनबी जवान का गुस्सा बता रहा था कि वो कुछ कर गुजरना चाहता है मगर अपनी मजबूरी को समझ रहा है। खामखा जान पर खेलने की हिमाकत नहीं कर रहा। पीछे बैठा हुआ शख्स फ़ोन पर राब्ता करने के बाद कह रहा था, हाँ हम पहुंच रहे हैं, उधर की पोजीशन बताओ। वो दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। थोड़ी देर तक हूँ हाँ करता रहा, फिर अपने साथियों से बोला, हम इस लड़की को उधर नहीं ले जा सकेंगे। दूसरे ने पूछा, क्या वहाँ गड़बड़ होने वाली है? नहीं, वो बोलता है, वारदात करो और वहाँ से भागो, थाने वाले ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। एक ने कहा, ये तो कोई बात ना हुई, थानेदार हिस्सा भी लेगा और टाइम भी नहीं देगा। हम इससे बहस नहीं कर सकते, हमें वहाँ से जितना माल मिले आधे घंटे के अंदर समेट कर लाना है। फिर तो इस लड़की को अड्डे में ले जाएंगे, वहाँ मौज मस्ती करेंगे। अरीमा सुन रही थी। इसका खून खुश्क हो रहा था। वो रहम तलब नज़रों से पास बैठे हुए जवान को देख रही थी। वो विंड स्क्रीन के पार देखता हुआ नागवारी से मुंह बना रहा था। हद नज़र तक शायराएँ वीरान थीं।
یوں لگ رہا تھا راتوں کو جاگنے والا کراچی شہر ہمیشہ کی نیند سو گیا ہے، انسانوں سے خالی ہو چکا ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ڈرائیو کرنے والے جوان سے کہا، آگے الٹا ہاتھ گلی کو موڑو، گاڑی آہستہ آہستہ چلاؤ۔ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ وہ کار ایک گلی میں مڑ کر دھیمی رفتار سے جانے لگی۔ پھر اس نے حکم دیا، سیدھے ہاتھ گلی میں چلو اور 5ویں کوٹھی سے آگے جا کر گاڑی روک دو۔ وہ ان کے نرغے میں بیٹھی گھبرا رہی تھی۔ وہ لوگ موج مستی کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سمجھ گئی تھی کہ خیر نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھا جوان بھی اسے بچا نہیں پائے گا۔ ایسے وقت خیال آیا، اگر وہ بے شرم بن جاتی اور مینیجر شاہد بابر کی بات مان لیتی تو پردے میں آبرو جاتی۔ اس کے ساتھ یوں اجتماعی درندگی نہ ہوتی جیسی اب ہونے والی ہے۔ پیچھے ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا، میں اکبر کے ساتھ جاؤں گا، تم ان دونوں کو نشانے پر رکھو گے۔ کوئی بھی چالاکی دکھائے تو فوراً گولی مار دینا۔ فائرنگ کی آواز سن کر بھی پولیس والے آدھے گھنٹے تک ادھر نہیں آئیں گے۔ ڈرائیو کرنے والے نے مطلوبہ کوٹھی سے آگے جا کر گاڑی روک دی۔ وہ اتر کر جانے لگے۔ ایک نے حکم دیا، انجن بند نہ کرو، ہم بس ابھی آ رہے ہیں، پھر فوراً ادھر سے نکلنا ہے۔ نوجوان نے کہا، ادھر روشنی ہے، آگے اندھیرے میں گاڑی رہے گی تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے لے جا کر اسے روکو۔ پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے آہنی گیٹ کے ضمنی دروازے کو کھول کر اندر چلے گئے۔ ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے افراد نے نوجوان کی گردن سے پستول کی نال لگا رکھی تھی۔ اس نے حکم دیا، گاڑی کو اندھیرے میں لے کے چلو۔ آگے صرف 20 یا 22 میٹر تک جانا تھا۔ اس نے گیئر بدل کر گاڑی آگے بڑھائی۔ پیچھے سے دھمکی سنائی دی، خبردار، ذرا بھی ہوشیاری دکھاؤ گے تو گولی چل جائے گی۔ وہ گیئر بدلتے ہوئے بولا، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ دیکھو۔ اچانک ہی ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ پیچھے کی طرف گرتے گرتے ٹریگر پر دباؤ پڑا۔ ٹھائنگ کی آواز کے ساتھ ہی ایک گولی کار کی چھت میں سوراخ کرتی ہوئی چلی گئی۔ وہ اگلی پچھلی سیٹوں کے درمیان گر پڑا تھا۔ ریوالور اس کی گرفت میں تھا، لیکن وہ اپنا توازن برقرار رکھے بغیر گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی کوٹھی کے احاطے میں تھے۔ فائر کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ گاڑی آندھی طوفان کی رفتار سے دور ہوتی جا رہی تھی، فائرنگ کی رینج سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ رک گئے۔ ان کا کھیل اچانک ہی بگڑ گیا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، ادھر وہ سنبھل کر اٹھ رہا تھا۔ ڈرائیو کرنے والے جوان نے اریما سے کہا، نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً ہی سیٹ سے پھسل کر نیچے آ گئی۔ وہ دشمن موت کا ہرکارہ سنبھل گیا تھا۔ اس نے سیٹوں کے درمیان سے اٹھتے ہوئے گولی چلانے کے لیے نشانہ لینا چاہا، اس سے پہلے ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ اچھل کر چھت سے ٹکراتا ہوا اگلی سیٹوں کے درمیان گیئر پر آ کر گرا۔ ریوالور ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ گیئر کا سرا اس کے سینے میں نیزے کی طرح لگا تھا۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ ڈیش بورڈ کے اندر ایئر فریشنر کا کین رکھا ہوا تھا۔ نوجوان نے فوراً ہی اسے نکال کر اس کی آنکھوں میں اسپرے کیا۔ وہ ایک دم سے چیخیں مار کر تڑپنے لگا۔ اس کے دونوں ساتھی تعاقب کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر بھی اس جوان نے گاڑی آگے بڑھا کر رفتار بھی بڑھا دی۔ وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے تکلیف سے کرا رہا تھا، آنکھیں کھولنے کے قابل نہیں رہا تھا، یقیناً عارضی طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ جوان نے آگے جا کر گاڑی روک دی۔ ایک طرف پڑے ہوئے پستول کو اٹھا کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، باہر نکل۔ وہ نہ آنکھیں کھول رہا تھا نہ کچھ دیکھ پا رہا تھا۔ جوان نے باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، پھر اسے بالوں سے پکڑ کر گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ اریما اپنی جگہ سے اٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ باہر کا منظر پوری طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے فائرنگ کی آواز سنتے ہی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لیں۔ وہ کسی کی ہلاکت دیکھ نہیں سکتی تھی، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بولا، سیدھی طرح آرام سے بیٹھو۔ وہ ونڈ اسکرین کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہوئے بولی، آپ نے اسے مار ڈالا ہے؟ وہ کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں ہمیں اخلاق اور تہذیب کا درس دیا گیا ہے، کسی درندے کو مارنا ہو تو یہی خیال آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی کسی ماں نے جنم دیا ہے،
میں چاہتے ہوئے بھی اسے ہلاک نہ کر سکا، بس زخمی کیا ہے۔ وہ انکار کے انداز میں سر ہلا کر بولا، تہذیب اور شرافت نے ہمیں کمزور بنا دیا ہے اور ہماری کمزوری دہشت گردوں کو شہزور بنا رہی ہے۔ اگر ابھی میں چالاکی نہ دکھاتا تو وہ لوگ واردات کرنے کے بعد مجھے مخبری کے لیے زندہ نہ چھوڑتے اور تمہیں کہیں لے جا کر۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اریما کا سر جھک گیا تھا۔ وہ بولا، ہم بڑی بے حیائی کے دور میں سانسیں لے رہے ہیں۔ کار ایک مخصوص رفتار سے جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ ایک شریف نوجوان کی پناہ میں ہے اور جلدی گھر پہنچنے والی ہے۔ اس نے پوچھا، تم اتنی رات کو تنہا کہاں جا رہی تھی؟ وہ بولی، تھوڑی دیر پہلے جس گارمنٹ فیکٹری میں دھماکہ ہوا تھا وہاں کام کرتی تھی۔ ابھی باہر آنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو۔ یا خدا، تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ نے جان بچائی ہے اور آپ نے میری آبرو بچائی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال تو اپنا ایڈریس بتاؤ، کہاں رہتی ہو؟ میں کس راستے سے تمہیں لے چلوں؟ میں سرجانی ٹاؤن میں رہتی ہوں۔ اوہ گاڈ، شہر کے آخری سرے سے نوکری کرنے یہاں آتی ہو؟ حالات سے لڑنے کے لیے تو دنیا کے آخری سرے تک بھی جانا پڑتا ہے۔ وہ سر ہلا کر بولا، درست کہتی ہو۔ پھر اس نے ویران سڑک پر دور تک نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، آگے ڈرگ روڈ اسٹیشن ہے، وہاں سے راشد مناس روڈ کی طرف مڑنا چاہیے، یہ شارٹ کٹ صحیح رہے گا۔ وہ پہلی بار مسکرا کر بولی، سواری کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ خدا بہتر جانتا ہے کشتی کو لہروں کی مرضی پر چھوڑنا ہے یا مخالف ہوا کے رخ پر لے جانا ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرا کر بولا، تم بہت اچھا بولتی ہو، نام پوچھ سکتا ہوں؟ اریما امان اللہ۔ امان اللہ میرے والد ہیں۔ میرا نام سجاد انور ہے، ہم الیکٹرانک آلات امپورٹ کرتے ہیں۔ شام ہوتے ہی دکانیں بند ہو رہی تھیں، میں بھی دکان بند کر کے گاڑی میں بیٹھنے آیا تو ان تینوں نے مجھے گن پوائنٹ پر اپنا محکوم اور تابع دار بنا لیا۔ آپ ماشاء اللہ دلیر بھی ہیں اور بے باک بھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ان بدماشوں سے آپ اس طرح ٹکرا جائیں گے۔ ڈگ روڈ کے چوراہے پر گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ مختلف سمتوں سے آنے والی گاڑیوں نے ایک دوسرے کا راستہ روک رکھا تھا۔ پتہ چلا ملینیم مال سے آگے راشد مناس روڈ بند ہے، نیپا چورنگی پر جلاؤ گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ سجاد نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اس کشتی کو حالات کے مطابق ہی لے جانا ہوگا، شارٹ کٹ والا راستہ بند ہے۔ وہ بولی، جدھر سلامتی ہے ادھر چلیں۔ گاڑیوں کو ٹھہر ٹھہر کر آگے بڑھنے کا راستہ مل رہا تھا۔ وہ بولی، مجھے آپ کے ساتھ اطمینان ہے، میں محفوظ رہوں گی۔ گھر دیر سے پہنچوں کوئی بات نہیں، مگر امی ابو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تمہیں فون کرنا چاہیے، اپنی خیریت بتاؤ گی تو انہیں اطمینان ہوگا۔ میں نے 3 گھنٹے پہلے فون کیا تھا، لیکن اب فیکٹری میں بم دھماکہ ہوا ہے، یہ خبر وہاں تک پہنچی ہوگی، ابو میرے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ سجاد نے فوراً ہی اپنا موبائل فون نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو، ابھی ان سے بات کرو۔ اس نے فون لے کر نمبر پنچ کیے، پھر اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے باپ کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون؟ وہ جلدی سے بولی، ابو میں اریما بول رہی ہوں، گھر آ رہی ہوں، بس ذرا دیر ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں۔ بیٹی، تم کہاں ہو؟ کیسی ہو؟ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، تمہاری فیکٹری کو جلتے دیکھا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں 7 مرد اور 5 عورتیں جل کر ہلاک ہو گئی ہیں، زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اسی لمحے ماں کی آواز سنائی دی، ہم پریشان نہیں ہوں گے، مگر سچ بولو، خدا نخواستہ زخمی ہو کر کسی اسپتال میں پہنچی ہو تو بتاؤ، ہم کسی بھی طرح تم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ پریشان نہ ہو امی، میں دھماکے سے پہلے ہی فیکٹری سے باہر نکل آئی تھی، بالکل ٹھیک ہوں، راستے میں ہوں، جگہ جگہ ٹریفک جام ہے، ذرا دیر سے پہنچوں گی۔ دوسری طرف سے باپ کی آواز سنائی دی، وہ اس کی ماں سے بول رہا تھا، مجھے بات کرنے دو۔ ماں کی آواز سنائی دی، ذرا رک جاؤ، تم سے زیادہ مجھے اس کی فکر ہے، کہہ رہی ہے کہ دیر سے پہنچے گی،
क्यों देर से पहुँचेगी? वो ज़रूर कुछ छुपा रही है। तुमसे नहीं बोलेगी, मुझे पूछने दो। अरीमा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। नीपा और सोराबकोट का रास्ता बंद है, इधर हंगामे हो रहे हैं, दूसरे रास्तों से आने में देर होगी। तुम औरतों के साथ हो ना? इसने चोर नज़रों से सज्जाद को देखा, फिर फ़ोन पर कहा, नहीं, फैक्ट्री की गाड़ी नहीं चल रही है, एक साहब के साथ हूँ, वही मुझे पहुँचाने आ रहे हैं। वो कौन साहब हैं? बूढ़े हैं या जवान हैं? उसने फिर कनखियों से सज्जाद को देखा और कहा, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। रुक जाओ, खबरदार, फ़ोन बंद ना करना, सच सच बताओ किसके साथ हो? वो माँ के इस रवैये को सज्जाद से छुपाना चाहती थी। जल्दी से बोली, फ़ोन में बैलेंस नहीं है, कहाँ ना आ रही हूँ। माँ ने धमकी दी, देख लड़की, फ़ोन बंद करेगी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरीमा ने राब्ता ख़त्म करके फ़ोन सज्जाद की तरफ बढ़ा दिया। वो बोला, बैलेंस बहुत है, तुम्हें बात पूरी करनी चाहिए। कोई ज़रूरी बात नहीं है, अभी तो वहाँ पहुँच ही जाऊँगी। फिर भी तुम यहाँ मुतमईन हो, अगर इन्हें इत्मीनान नहीं है, इनकी मोहब्बत को समझो, वो तुम्हारे लिए तड़प रहे होंगे। वो अचानक ही दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। इसने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? वो आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, कोई बात नहीं है, बस यूं ही रोना आ गया। वो गाड़ियों के हुजूम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। इसने कहा, माँ बाप की मोहब्बत ऐसी ही होती है, इनकी आरज़ी जुदाई तुम्हें रुला रही है, क्या इनकी एक ही औलाद हो? यकीनन यही बात है, इधर वो भी तड़प रहे हैं। इसी वक्त फ़ोन की बेल सुनाई दी। सज्जाद ने बटन दबाकर इसे कान से लगाया और फिर पूछा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से अरीमा की माँ ने पटाखे की तरह फटते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या मेरी बेटी के साथ हो? अगर हो तो फ़ोन इसे न देना, तुम मुझसे बात करो। अरीमा बेखबर थी कि इधर से माँ बोल रही है। सज्जाद ने बड़ी शाइस्तगी से कहा, जी फरमाइए, मैं समझ रहा हूँ कि आप परेशान होंगी, मैं जल्द ही इन्हें आपके पास पहुँचा दूँगा। अरीमा ने चौंक कर फ़ोन की तरफ झपटते हुए कहा, अम्मी बोल रही होंगी, मुझे बात करने दें। दूसरी तरफ से माँ ने तड़क कर कहा, खबरदार, फ़ोन इसे न देना, पहले तुम मुझसे बात करो। वो अरीमा से बोला, प्लीज़, ये मुझसे बात करना चाहती हैं। नहीं, फॉर गॉड सेक, आप इनसे ना बोलें, फ़ोन मुझे दे दें। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, ए मियाँ, वो बोलने से मना कर रही है, अपने काले करतूत छुपा रही है। मैं नन्ही बच्ची नहीं हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। पहले मुझसे दो टोक बात करो, ये यारी दोस्ती कब से चल रही है? सज्जाद ने कान से फ़ोन हटाते हुए अरीमा को देखते हुए हैरानी से पूछा, क्या ये तुम्हारी अम्मी हैं? वो समझ गई, माँ ने ज़रूर जाहिलाना अंदाज में कोई शर्मनाक बात कही है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगी। सज्जाद ने फ़ोन को कान से लगाया। वो आवाज़ें दे रही थी, अरे तुम कहाँ हो? बोलते क्यों नहीं? मैं ज़बान की कड़वी हूँ मगर दिल की बहुत अच्छी हूँ। मुझसे मामला करो, फिर मैं नहीं रोकूंगी, जब चाहोगे इसे यहाँ से ले जाओगे। इसने कनखियों से अरीमा को देखा और फिर पूछा, क्या पहले भी किसी से मामला तय हुआ है? अरे नहीं मियाँ, वो बिल्कुल कोरा कागज़ है। अब तक तो यही कहकर मुझे उल्लू बनाती रही कि गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही है, इज़्ज़त व आबरू से 10,000 रुपये कमा कर ला रही है। आज शहर में हंगामे ना होते तो भेद ना खुलता। सच बताओ, क्या वो महाना 10,000 रुपये तुम इसे देते हो? वो इसकी बातें सुन रहा था और गुस्से से होंठ भींच रहा था। फिर बोला, अगर इस लड़की ने तुम्हें माँ ना कहा होता तो मैं अभी तुम पर थूक देता। वो चिंगाड़ने के अंदाज में बोली, हे थूकने वाले, समझ ले, अब तू गया काम से। अभी थाने में तेरा नंबर लिखवाऊंगी, बयान दूंगी कि तूने हंगामों से फ़ायदा उठाकर मेरी बेटी को अगवा किया है, तुझसे तो पुलिस वाले ही। इसने फ़ोन बंद करते हुए कहा, ये तो बहुत ही ख़तरनाक औरत है, तुम इसे माँ कहती हो? वो एक सर्द आ भर कर बोली, मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं हैं, अबू ने इनके बाद दूसरी शादी की थी, आप गाड़ी रोकें। ये कहते हुए उसने पलटकर दरवाज़ा खोलना चाहा। सज्जाद ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ये क्या हरकत है, कहाँ जा रही हो? वो बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे छोड़ दें, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। कार रुक गई थी।
पीछे वाली गाड़ियों के हॉर्न चीख रहे थे। उसने एक हाथ से अरीमा को रोक रखा था और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए कार को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हुए बोला, प्लीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम ना बनो, आराम से बैठो। आप मेरा बाजू छोड़ दें। तुम जानती हो मैंने इसे नेक नियति से पकड़ा है। तुम मौत चाहती हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी चाहता हूँ। वो रिहाई पाने के लिए मचलते हुए बोली, मैं जिल्लत से जीना नहीं चाहती। कौन तुम्हें जलील कर रहा है? मेरी माँ, मेरे अपने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने देते। मैं इज्जत के बगैर जीना नहीं चाहती। तुम्हें जीना चाहिए। तुम इज्जत से माहाना 10,000 कमाती रही हो। खुदा तुमसे खुश है। आज इसने 3 गुंडों से तुम्हारी इज्जत बचाई है। क्या इस हकीकत से इनकार करोगी कि खुदा तुम पर मेहरबान है? वो थम गई, बाजू छुड़ाना भूल गई। इसने पूछा, क्या तुम इनकार करोगी कि मैंने एक वसीला बनकर तुम्हारी इज्जत बचाई है? वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती थी। सर झुकाकर बोली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम मेरे एहसान का बदला अभी चुका सकती हो। वो ज़रा हिचकिचाकर बोली, मैं अभी कैसे चुका सकती हूँ? खुदकुशी से तौबा करके। मेरे एहसान को याद करने के लिए ज़िंदा रहो। इसका सर झुक गया। सज्जाद ने इसका हाथ छोड़कर दोनों हाथों से स्टीयरिंग संभाल लिया। तमाम गाड़ियाँ चींटी की चाल चल रही थीं। ट्रैफिक ऐसा धर्म भरम था कि किसी को तेज़ी से आगे निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। इसने अरीमा पर एक नज़र डाली, फिर ड्राइविंग पर तवज्जो देते हुए कहा, आज तुम सही सलामत घर नहीं पहुंचोगी तो पुलिस वाले मुझे हवालात में पहुंचा देंगे। वो बोली, पुलिस वाले नहीं जानते कि मैं आपके साथ हूँ। तुम्हारी सुतेली माँ ने धमकी दी है। शायद वो अपनी धमकी पर अमल भी कर रही होगी। कह रही थी कि मेरा फ़ोन नंबर इसके पास पहुंचा हुआ है। वो थाने में नंबर लिखवा कर बयान देगी कि मैं तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ और मैं ये बयान दूंगी कि आप मेरे मोहसिन हैं। खुदकुशी के बाद कैसे बयान दोगी? उसका सर झुक गया। वो ज़रा देर चुप रही और फिर बोली, मैं खुदकुशी नहीं करूँगी, जिंदा रहूँगी। सज्जाद ने बड़ी संजीदगी से मुस्कुराते हुए इसे देखा। वो बोली, मगर वहाँ नहीं जाऊँगी। वो घर जहन्नम से बदतर हो चुका है। बात तो वही हुई। घर नहीं जाओगी तो तुम्हारे अगवा की रिपोर्ट दुरुस्त मान ली जाएगी। मैं पकड़ा जाऊँगा। वो कुछ न बोल सकी। दोनों हाथों से सर थाम कर सोचने लगी। बाज़ औक़ात हालात की मार ऐसी पड़ती है कि दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। बदनसीबी पीछे पड़ जाए तो अच्छा करने पर भी बुराई सामने आती है। सज्जाद इसके साथ अच्छा सलूक कर रहा था। वो इसे किसी मुसीबत में फंसाना नहीं चाहती थी और सौतेली माँ के साए में भी जाना नहीं चाहती थी। वो बोला, मैं इस हद तक तो समझ गया हूँ कि इस घर का माहौल तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ है, इसीलिए वहाँ जाना नहीं चाहती। वो बोली, मैंने इस घर में बचपन गुजारा है। अम्मी जैसे भी मसालिम ढाती रहें, इन्हें बर्दाश्त करती रही, मगर जवान होने के बाद वो पीछे पड़ गईं कि हज़ारों लाखों रुपए कमाने वाले किसी बड़े आदमी को फांस कर घर ले आऊँ। उसने नागवारी से कहा, प्लीज़ मेरे सामने इस औरत को अम्मी ना कहो। इसका नाम क्या है? नाम तो जीनत बेगम है, मगर वो इंडियन फिल्मी हीरोइन जीनत अमान को बहुत पसंद करती हैं। इनकी ये जीनत अमान बनने की ख्वाहिश इस तरह पूरी हो गई कि मेरे अब्बू का नाम अमानुल्लाह है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे अब्बू इस जीनत अमान के दबाव में रहते हैं। हाँ, उन्होंने बुढ़ापे में शादी करने की गलती की। इसकी सज़ा खुद भी पा रहे हैं और मुझे भी अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। वो 70 बरस के हैं और जीनत बेगम 40 बरस की। खुद को कम उम्र साबित करने के लिए कहती हैं, इन्हें अम्मी नहीं बाजी कहा करूं। जब वो तुमसे कहती हैं कि लाखों रुपए कमाने वाले को फांस कर लाओ, तो खुद कैसे गुल खिलाती होंगी? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, इनकी शर्मनाक हरकतों से ख़ानदान की नेक नामी खाक में मिल चुकी है। अब्बू बीमार हैं, चारपाई पर पड़े रहते हैं, न कमाते हैं न घर के रखवाले बन सकते हैं। एक बार उन्होंने तन्हाई में रोते हुए मुझसे कहा था, बेटी, कोई बाप अपनी औलाद को ऐसा मशवरा नहीं देता, लेकिन मैं दे रहा हूँ। यहाँ से भाग जाओ, मेरी फ़िक्र न करो। अगर नहीं जाओगी और किसी दिन तुम्हारी इज्जत पर आँच आएगी, मेरा दम निकल जाएगा। इससे पहले ही चली जाओ। सज्जाद ने देखा, इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे।
वो इन्हें रोकने की कोशिशें कर रही थी और दुपट्टे से आंखें पोंछ रही थी। इसने कहा, मैं अब्बू को ज़ीनत बेगम के रहमो करम पर छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने मिजाज के ख़िलाफ़ वहाँ रहती रही। अब ये बात समझ में आ रही है कि अब्बू मेरी अखलाकी पस्ती नहीं देखना चाहते, आखिरी सांसों में इत्मीनान चाहते हैं कि मैं इस जहन्नम से निकल गई हूँ। वो बोल रही थी। वक्त गुजर रहा था। उन्होंने 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में बड़े सब्र और तहम्मुल से तय किया। वो बलोच कॉलोनी पहुँचने लगे। वहाँ से रास्ता बदल कर आगे जा सकते थे। ऐसे ही वक्त चारों फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगीं। सज्जाद ने इसे खींचकर अपनी तरफ झुकाया, फिर खुद भी झुकते हुए बोला, इधर सीट के नीचे बैठो, मैं गाड़ी निकालने की कोशिश करता हूँ। वो सर उठाना चाहता था कि एकदम अरीमा ने उसका सर नीचे झुका दिया। नहीं नहीं, सर ना उठाएं, गोली लग सकती है। बाहर मौत थी, अंदर मोहब्बत, मुरब्बत और इंसानियत थी। वो एक दूसरे की सलामती चाहते थे। एक दूसरे के करीब इस तरह हो गए कि सांसें टकरा रही थीं। वो कौन लोग थे? क्यों गोलियां चला रहे थे? बम धमाके कर रहे थे? दुकानों फैक्ट्रियों को आग लगा रहे थे? एक असीम खातून रहनुमा की शहादत के बाद पूरे शहर में आग और खून की होली क्यों खेली जा रही थी? ये सवाल सभी के जहनों में था, मगर जवाब नहीं मिल रहा था। वो खूनी ड्रामा समझ में नहीं आ रहा था। बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे दूर तक गाड़ियां रुकी हुई थीं। पता नहीं कितनी सिमतों से फायरिंग की गई थी। सभी अपनी अपनी जगह दुबक गए थे। यूं दुबक कर रहने से इन दोनों को एहसास हुआ कि क़यामत की इस घड़ी में चोर जज्बे दबे पांव हावी हो रहे हैं। फायरिंग थम गई थी। सज्जाद ने बड़ी अपनायत से अरीमा को देखा। इसकी आंखें हया से झुक गईं। सज्जाद ने मोहतात अंदाज में सर उठाकर देखा। इक्का दुक्का गाड़ियां किसी तरह रास्ता बनाकर वहां से निकल रही थीं। इसने भी कार स्टार्ट की। अरीमा सीधी होकर बैठ गई। दुपट्टे को सर से ओढ़कर खुद को छुपाने लगी। कुछ देर तक करीब रहने की वजह से अब वो अजनबी नहीं लग रहा था। दुपट्टे में छुपने के बावजूद साफ छुपने को जी नहीं चाह रहा था। इसे चोर नज़रों से देखना अच्छा लग रहा था। वो दूसरी गाड़ियों के साथ सर्विस रोड से होकर दूसरे रास्ते पर आ गए। इधर न ज़्यादा ट्रैफिक था, न किसी तरह की रुकावट थी। उन्होंने खिड़की के शीशे नीचे कर दिए। ठंडी हवा के झोंके आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हब से बेजा से निकलकर खुली फजा में आ गए हों। मोबाइल फ़ोन की बेल सुनाई दी। सज्जाद ने नन्ही सी स्क्रीन पर नंबर पढ़कर कहा, वो चुड़ैल फिर कॉल कर रही है। अरीमा बहुत अच्छे मूड में थी, जैसे हवाओं में उड़ रही थी। परेशान होकर फ़ोन की तरफ देखने लगी। सज्जाद ने कहा, तुम खामोश रहना, मैं बात करता हूँ। इसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया और वे कहा, हेलो मोहतरमा, आप कौन हैं? क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हैं? एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी, ओए, मैं इलाके का थानेदार बोल रहा हूँ, लड़की कहाँ है? सज्जाद ने कहा, ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गया हूँ? 1 घंटे पहले इसी नंबर से फ़ोन करके एक खातून ने पूछा था कि इसकी बेटी कहाँ है। आखिर मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों को कहाँ से मिल गया है? ओए, ज़्यादा बकबक न कर। पहले इस लड़की ने इस नंबर पर फ़ोन किया था। अगर आप वाकई थानेदार हैं तो तवज्जो से सुने। किसी ने मुझे SMS के ज़रिए कहा था मैं इस नंबर पर राब्ता करूं, बहुत अहम बातें करनी हैं। तब मैंने फ़ोन किया तो एक मोहतरमा ने कहा कि वो इंडियन फिल्म की हीरोइन ज़ीनत अमान है। आप अभी इससे पूछें वो ख़ुद को ज़ीनत अमान कहती है या नहीं। हाँ, इसने थाने में यही नाम बताया है। इधर से आवाज़ सुनाई दी। वो ज़ीनत बेगम से पूछ रहा था, ओए, तू ज़ीनत अमान कहाँ से आ गई? वो तो इंडिया में रहती है। सज्जाद ने मुस्कुराकर अरीमा को देखा। इसने पूछा, वो क्या कह रहे हैं? मामला थाने तक पहुंच गया है और आप मुस्कुरा रहे हैं। थानेदार ने फ़ोन पर कहा, लो जी, बात क्लियर हो गई। ये पाकिस्तानी कच्ची आबादी वाली ज़ीनत अमान है। आप इससे पूछें वो अपनी बेटी के अगवा का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रही है। मैं सुप्रिटेंडेंट कमाल अहमद का छोटा भाई जमाल अहमद हूँ। अब अगर इल्ज़ाम लगाया तो? वो जल्दी से बोला, सर जी, आप SP साहब के भाई हैं? सॉरी जनाब, मैं आपको सल्यूट कर रहा हूँ। सज्जाद ने कहा, वालेकुम सल्यूट। इस औरत को ठुड्डे मारकर थाने से बाहर करो। इसने फ़ोन बंद कर दिया। अरीमा ने कहा, आपने एक पुलिस अफसर का हवाला दिया है, जब ये झूठ मालूम होगा तो?
वो बोला, झूठ सिर्फ इतना ही है कि मैं जमाल अहमद नहीं हूँ, मगर एसपी कमाल अहमद का छोटा भाई जमाल अहमद मेरा दोस्त है। बात बिगड़ेगी तो वो बना लेगा, तुम फिक्र ना करो। वहाँ थाने में जीनत अमान की शामत आ गई होगी। वो परेशान होकर सोचने लगी। सज्जाद ने पूछा, अब क्या हुआ? वो बोली, इस थाने में इसकी बेइज्जती होगी तो वो घर आकर सारा गुस्सा अब्बू पर उतारेगी। खिसियानी बिल्ली को खंबा नोचने दो। तुम्हारे अब्बू ने इससे शादी की है, इसे एक अरसे से भुगत रहे हैं, कुछ और भुगत लेने दो। अपना फैसला सुनाओ, क्या इरादा है? कहाँ जाओगी? कहीं ठिकाना बना सकती हो? वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि यूं अचानक बेघर हो जाऊंगी। सर से छत खिसक जाएगी, खुले आसमान तले आ जाऊंगी। यानी किसी का आसरा नहीं है? मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, मुझे बहुत चाहती है, कई बार कह चुकी है कि मैं सौतेली माँ को छोड़कर इसके साथ रहूं। क्या अभी वहाँ जा सकती हो? हाँ, मगर नहीं जाऊंगी। कई वर्ष पहले इसकी माँ वफात पा चुकी है। इसके बाप ने मुझे दूसरी शादी के लिए प्रपोज किया था, जबकि मैं इसकी बेटी के बराबर हूँ। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया है। हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है, सहारे मिलते हैं, मगर सहारा देने वाला या तो कमज़ोर होता है या खुद गर्ज। वो बातें करते करते क्लिफ्टन के इलाके में आ गए। अरीमा ने चौंक कर पूछा, यह हम कहाँ पहुँच गए हैं? ये अमीर कबीर लोगों का इलाका है, यहाँ भी हंगामे नहीं होते। आज भी कहीं तोड़ फोड़ नहीं हो रही है। यहाँ कुछ सुकून हासिल होगा। हम कुछ खाएंगे पिएंगे और तुम्हारे मामलात पर गौर करेंगे। वो 3 तलवार से आगे एक चौक में आ गए। वो बारौनक रहने वाला चौक इस वक्त कुछ उजड़ा उजड़ा सा दिखाई दे रहा था। मामूल की चहल पहल नहीं थी, फिर भी 2-4 होटल खुले हुए थे। उन्होंने सड़क के किनारे कार रोकी, फिर एक होटल में आकर बैठ गए। सज्जाद ने अरीमा की पसंद के मुताबिक खाने का आर्डर देने के बाद कहा, आज तुम आज़ाद हो। उसने कहा, हाँ, इस हवाले से आज़ाद हूँ कि मुझे कैद करने वाली 4 दीवारी नहीं रही है। न मैं किसी के लिए परेशान हूँ, न कोई परेशानी से मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो एक ज़रा तवक्कुफ़ से बोली, एक अब्बू हैं, इन्हें मेरा इंतज़ार भी होगा और वो दुआएं भी मांग रहे होंगे कि मैं वापस ना आऊँ। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, बाज़ हालात में लहू के रिश्ते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अब्बू मेरी इज़्ज़त व आबरू की सलामती चाहते हैं। ऐसी अफरा तफरी और हंगामों के वक्त अपनी बेटी को घर से दूर रखना चाहते हैं। बाहर मेरी जान जा सकती है, मगर घर में तो इज़्ज़त से भी जाऊंगी। गुलिस्तान जौहर में मेरा एक अपार्टमेंट है, वो खाली पड़ा है, तुम वहाँ रह सकती हो। तन्हा लड़की मस्जिद में भी रहे तो बदनाम हो जाती है। 10 तरह के सवालात उठाए जाते हैं। कौन है, कहाँ से आई है, इसका बाप भाई या शौहर क्यों नहीं है, क्या काम करती है? हाँ, ऐसा मुहासबा ना किया जाए तो औरतें बेलगाम हो जाती हैं। औरतें तो हमेशा पाबंदियों में रहती आई हैं। मर्द इन्हें पाबंदियों में रखकर खुद को बेलगाम होने से रोकता है। वो बोला, हम बुनियादी तौर पर शरीफ और महसिब नहीं हैं। हज़ारों साल से औरत मर्द के और मर्द औरत के चाल चलन पर शुबा करता आ रहा है। सीधी सी बात है, मर्द खूंखारी से बाज आ जाए तो औरत कभी किसी खतरे से दो चार ना हो। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि एक मर्द शफून मारता है और दूसरा बॉडीगार्ड बनता है? सज्जाद ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। क्या यह गलत है कि दुनिया आप लोगों की मुट्ठी में है, औरतें आपकी महकूम हैं? आप चाहें तो सारे फितने फसादात ख़त्म करा सकते हैं, मगर नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आपकी दुनिया रंगीनियों और मस्तियों से खाली हो जाएगी। वो चुप हो गई। मेज़ पर खाने की डिशें लाकर रखी जा रही थीं। सज्जाद ने वेटर के जाने के बाद कहा, खाना शुरू करो और गमे दोना की नहीं गमे जाना की बात करो। सारी रात सड़कों पर भटकना है या किसी छत के नीचे पनाह लेनी है? वो बोली, हैदराबाद में मेरे मामू और सक्कर में मेरी फूफी रहती हैं। इधर टीवी की तरफ देखो, पूरे मुल्क में मामू और फूफियाँ एक दूसरे से कट गए हैं। टीवी पर खबरें पेश की जा रही थीं। ट्रेनों की आमदोरफ्त रुक गई थी। रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई थीं। ट्रेनों की कितनी ही बोगियां जला दी गई थीं। अरीमा ने कहा, ऐसी वारदातें रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले अमन पसंद गरीब आवाम तो नहीं कर सकते।
सज्जाद ने कहा, किसी सियासी पार्टी के कारकुन भी ऐसा करने से सियासी मफाद हासिल नहीं कर सकेंगे। सीधी सी बात समझ में आ रही है कि सोचे समझे मंसूबों के मुताबिक दहशतगर्दी और तख्सीबकारी कराई जा रही है। कौन करा रहा है? ऐसे वक्त यही कहा जाता है कि वो खुफिया हाथ ऐसी तख्सीबकारी कराते हैं जिन्हें पाकिस्तान का वजूद गिरां गुजरता है। हम ऐसा क्यों होने देते हैं? हम नहीं होने देते। हुकूमत की कमज़ोरियाँ खुफिया हाथों को मजबूत करती हैं। बाय द वे, हम पे ज़माने का गम खा रहे हैं। अपनी बात करो, हाईवे के रास्ते भी नहीं जा सकोगी। आप मेरे लिए परेशान हैं, मेरे साथ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि वापस घर चली जाऊं। वो चुप रहा, सर झुकाए खाता रहा। अरीमा ने कहा, मुझे मेरी मुलाजमत से भी निकाल दिया गया है, फैक्ट्री भी तबाह हो गई है, आमदनी का जरिया ख़त्म हो चुका है, सौतेली माँ के साए में जाना ही होगा। तुम्हारी तालीम क्या है? 12वीं जमात पास करने के बाद आगे न पढ़ सकी। मैं मम्मा और पापा से कहूँगा, तुम्हें मुलाजमत मिल जाएगी। जस्ट अ मिनट। वो नेपकिन से मुंह साफ करके मोबाइल फ़ोन पर नंबर पंच करने लगा। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, हाय मम्मा। माँ ने कहा, बेटी तुम कहाँ हो? तुम्हारा नंबर बंद क्यों जा रहा था? सॉरी मम्मा, मैंने सिम बदल दी है, आपको बताना भूल गया था। फ़ोन तो करना चाहिए था। तुम्हारे डैड परेशान हो रहे हैं, लो इनसे बात करो। अभी नहीं मॉम, पहले आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो। वो कनखियों से अरीमा को देखते हुए बोला, आपको एक लड़की से मिलाना चाहता हूँ, अभी मिलना चाहेंगी? अरीमा मुंह तक लुकमा ले जाते रुक गई। सर झुकाए उसकी बातें सुनने लगी। इसकी मम्मा पूछ रही थी, क्या तुम किसी लड़की के साथ हो? जी, 3 तलवार के करीब एक होटल में हूँ। ताज्जुब है, पूरे शहर में अफरा तफरी फैली हुई है, गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है, और तुम किसी के साथ रोमांस कर रहे हो। फ़ौरन उसे यहाँ लाओ। फ़ौरन नहीं आ सकूँगा, अभी तक कितने ही रास्तों में रुकावटें हैं, कहीं कहीं गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं। फिर तो अभी ना आओ, होटल में ही रहो। वैसे वो कौन है? क्या उसके घर वाले उसके लिए परेशान नहीं हो रहे हैं? इसके घर की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद हैं और मैं इसके साथ किसी होटल में नहीं रह सकता। हाँ, कितनी ही देर हो जाए मैं घर आऊँगा। अच्छी बात है, देखभाल कराओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। उसने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अरीमा ने पूछा, आप मुझे अपने घर ले जाएंगे? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने इस आफत ज़दा मकान में जाओ और फिर किसी आफत से 2-4 होती रहो। मगर आपके बुज़ुर्ग मेरे मुतालिक क्या राय कायम करेंगे? वो मेरे वालिदैन हैं, मेरी तरह दूसरों की मजबूरियों को समझते हैं। मौजूदा हालत में पता नहीं कितनी औरतें, बूढ़े और बच्चे सवारी न मिलने के बायस घरों से दूर भटक रहे होंगे। इनमें से तुम भी एक हो, अभी तक भटक रही हो। वो इसकी बातें सुन रही थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। सज्जाद ने कहा, तुमने खाने से हाथ रोक लिया है? मैं खा चुकी हूँ, खुराक इतनी ही है। झूठ बोल रही हो, तुम्हारे चेहरे से परेशानी झलक रही है। क्या मेरे घर जाना नहीं चाहती? वो हिचकिचाते हुए बोली, आपकी तो आलीशान कोठी होगी, मैंने खूबसूरत और महंगी कोठियाँ दूर से देखी हैं, कभी अंदर नहीं गई। प्लीज़ मुझे वहाँ न ले जाएं। वो शरारत से बोला, मैं समझ रहा हूँ, मेरी कोठी तुम्हारे शायान शान नहीं है, तुम वहाँ कदम रखना नहीं चाहती। वो जल्दी से बोली, आप उल्टी बात समझ रहे हैं, मैं इस कोठी के काबिल नहीं हूँ। नहीं, वो कोठी तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम मेरा दिल रखने को उसे बरतर और ख़ुद को कमतर कह रही हो। मैं मम्मा से जाकर कह दूँगा। उसने टटोलती हुई नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या कह देंगे? यही कि तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझती। मैंने ये कब कहा? यानी अपने काबिल समझती हो? ये ज़ुमाइनी सवाल था। वो उलझ गई। जवाब हाँ या ना में देना था। वो हिचकिचाते हुए बोली, जी वो उसने कहा, मुझे अपने काबिल समझती हो या नहीं, हाँ ना में जवाब दो। वो घुमा फिराकर उसे इकरार मोहब्बत के मकाम पर ले आया था। उसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। वो हंसने लगा, हंसते हंसते कहने लगा, हमारी दुनिया में सिर्फ आग और खून नहीं है, फूल और खुशबू भी है। ज़िंदगी सिर्फ मातम करना नहीं,
मुस्कुराना भी जानती है। ज़िंदगी हर सू मातम करती, वतन अज़ीज़ के मशरिक़ से मग़रिब तक और शुमाल से जुनूब तक तमाम इंसानी आबादियों में इंसानियत का दम तोड़ रही थी। अगरचे इन दोनों के एहसासात और जज्बात को नया रंग, नई तरंग मिल रही थी, ताहम आगे जाकर हालात का ऊँट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जान सकता था। ज़ीनत अमान खूब सज संवर कर थाने गई थी। उम्मीद थी कि पुलिस की मदद से सौतेली बेटी के दोस्त तक पहुंच सकेगी, इसे गिरफ्तार कराएगी और माहाना 10,000 रुपये कमाने वाली बेटी को घर वापस ले आएगी। मगर वहां पहुंचकर उल्टी मुसीबत गले पड़ गई। थानेदार ने इसे 2-4 हाथ जमा कर कहा, कुत्ते की बच्ची, एसपी साहब के भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई है, हमारी नौकरी खाना चाहती है, चल भाग यहाँ से। वो मार खाकर झुंझुला गई थी। थानेदार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। शौहर होता तो इसका कलेजा नोच लेती। इसने कसम खाई कि घर जाकर अरीमा के बाप पर गुस्सा उतारेगी। इस सौतेली की वजह से वो जलील हो रही थी। थाने के बाहर उसका नया दोस्त यार मोहम्मद खड़ा हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ? इसने यार मोहम्मद को नहीं बताया कि बड़ी बेआबरू होकर थाने से निकली है। नागवारी से बोली, ये थाने वाले अपने बाप के भी नहीं होते। थानेदार 1,000 मांग रहा है, क्या रकम लाए हो? इसने फ़ौरन ही जेब से 1,000 का नोट निकालकर देते हुए कहा, मेरी जान, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। जान ने नोट को अच्छी तरह तय करके अपने गिरेबान में दबो दिया। थानेदार किसी वक्त घर आकर रकम लेगा, फिर हमारा काम करेगा। वो इसका हाथ थाम कर बोला, अब तू मेरे काम आ जा, कब तक टरखाती रहेगी? वो हाथ छुड़ाकर बोली, बावला हुआ है क्या? आने जाने वाले क्या सोचेंगे? वो बुढ़ा आधी रात को सो जाएगा, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी, तू आ जाना। निचले तबके में ऐसे गुनाह और जुराइम रोज़ का मामूल बन चुके हैं। बीवी जवान और मियाँ बूढ़ा हो या जवान होने के बावजूद हड हराम हो तो 2-4 दोस्तों के ज़रिए घर का चूल्हा भी गर्म रखा जाता है और अपने ज़ाती अखराजात भी पूरे किए जाते हैं। फिर बुढ़ापा हावी होने तक बेटियां जवान होकर सहारा बन जाती हैं। ये शर्मनाक रोज़गार इसलिए आम हो चुका है कि कोई महासुबह करने वाला नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। बेहिसी और बेगैरती कहती है, जिसे जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है गुजारता रहे, हमारे बाप का क्या जाता है। हम तो अपने धंधे से लगे हैं, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। अंधेर नगरी में रहने का यही फ़ायदा है, कोई किसी के मुंह की कालक देखते हुए भी नहीं देखता। कोई नहीं मानता कि हम गलत हो चुके हैं। इन पर एक कार की हेडलाइट्स पड़ने लगीं। दहशतगर्दी और तक़सीबकारी के बायस लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। सड़कें और गलियां वीरान थीं। एक टैक्सी इनके करीब आकर रुक गई। एक शख्स अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। जीनत ने इसे देखते ही परेशान होकर कहा, दिलशाद, तू? दिलशाद ने गुस्से से कहा, हरामखोर, मैं तेरे घर के चक्कर लगा रहा हूँ, उधर मेरे को दौड़ा रही है और इधर इस दोस्त के साथ मौज कर रही है। वो बोली, इसका नाम यार मोहम्मद है, मगर ये मेरा दोस्त नहीं है। मैं तो रिपोर्ट लिखवाने इसके साथ थाने आई थी। दिलशाद ने ज़ोर का तमाचा रसीद करते हुए कहा, अब मैं उल्लू नहीं बनूंगा। पिछले 3 महीनों में मेरे से 10,000 रुपये ले चुकी है। मेरे को पहले ही शुबा था कि तू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है। इसने अभी तुझे कुछ दिया था और तूने गिरबान में रखा था। वो ताने से मार खाकर आई थी, इसका तमाचा खाकर झुंझुला गई। पाँव पटकते हुए बोली, तू मेरा दोस्त है, घरवाला नहीं है। अब मुझ पर हाथ ना उठाना, मैं कह चुकी हूँ कि ये मेरा दोस्त नहीं है, मुँह भोला भाई है। तेरे कितने भैया हैं, कितने सैयाँ हैं, अभी मालूम हो जाएगा। इसने लिबास के अंदर से चाकू निकालकर खोलते हुए यार मोहम्मद से पूछा, तूने इसे कितनी रकम दी है? चाकू खुलते ही यार मोहम्मद एकदम से उछलकर पलटा और वहाँ से भागता चला गया। दिलशाद ने एक तरफ थूकते हुए कहा, हरामखोर, मेरे जैसे मर्द को छोड़कर ऐसे जनखे से दिल लगाती है। चल मेरे को दिखा, इसने कितनी रकम दी है। उसने उसकी कमीज़ की तरफ हाथ बढ़ाया। वो पीछे हट गई। उसने और आगे बढ़कर इसे दबोचते हुए कहा, रकम निकाल, तूने मुझे खूब लूटा है, आज मैं कड़की में हूँ। वो इसके कमीज़ को फाड़ देना चाहता था।
वो तड़प रही थी, मचल रही थी। दिलशाद ने तेज में आकर चाकू का एक वार किया। इसके हलक से चीख निकली। इसने कमीज को काट दिया था। 1000 का एक नोट ज़मीन पर गिर पड़ा। वो इसे उठाकर भागना चाहता था। इसी वक्त टैक्सी स्टार्ट होकर तेज़ रफ्तारी से दूर जाने लगी। वो ज़मीन पर से नोट उठाकर दौड़ते हुए चीखने लगा, अबे ओ रुक जा, अबे कहाँ छोड़कर जा रहा है, रुक जा, डबल किराया दूंगा। वो दौड़ता और चीखता हुआ आ रहा था, मगर टैक्सी की रफ्तार ने इसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। टैक्सी का ड्राइवर एक बूढ़ा शख्स था। वो लाहौल पढ़कर ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रहा था, या खुदा, ये क्या हो रहा है? अगर मैं वहाँ रुकता तो वो मुझे भी हलाक कर देता। मुझे क्यों हलाक करता? इस औरत को क्यों मार डाला? कत्ल गारतगरी की वजूहात होती भी हैं और नहीं भी होती। बस यूं ही शुगल के तौर पर जगह जगह बंदों को मारा जा रहा है। ये कैसी नस्ल जवान हुई है? किसी को चींटी की तरह मसल देती है और मज़े लेती है। ऐसे लोगों की वहशत देखो तो लगता है वो रूहानी मुसरतें हासिल कर रहे हैं। वो 3 मंजिला मकान, आशियाना, रात की तारीकी में कहीं कहीं से झलक रहा था। लोड शेडिंग के बायस महल्ले के दूसरे मकानात भी तारीकी में छुपे हुए थे। ऐसे वक्त पुलिस मोबाइल वहाँ आकर रुकी। एक सिपाही ने गाड़ी से उतरकर दरवाजे को पीटना शुरू किया। अंदर से पूछा गया, कौन है? बड़े रौब से गरजते हुए कहा गया, पुलिस है, दरवाज़ा खोलो। इस 3 मंजिला मकान के मालकान 3 भाई थे। तीसरा भाई बशारत निचले हिस्से में रहता था। वहाँ एक बड़े से कमरे में आतिशबाजी का सामान ज़ख़ीरा किया जाता था। पुलिस वाले कभी कभी इस बारूद के ज़ख़ीरे पर एतराज़ करने आते थे, फिर 100-200 जेब में डालकर चले जाते थे। बशारत ने दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हुए हवलदार को सलाम किया और फिर कहा, जनाब अली, मैंने कल ही तो अदायगी की है। हवलदार ने कहा, हम कुछ लेने नहीं, एक बुरी खबर सुनाने आए हैं। तुम्हारे घर में जो ज़ीनत अमान रहती थी, इसे कत्ल कर दिया गया है। बशारत ने परेशान होकर पूछा, किसने कत्ल किया है? यही तो मालूम करना है। हम गश्त करने निकले थे। थाने से ज़रा दूर सड़क के किनारे इसकी लाश दिखाई दी। वो कुछ देर पहले वहाँ अगवा की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। इसके खामिद को बुलाओ और तुम सब थाने में आओ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना है। वो लोग वापस चले गए। बशारत ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहली और दूसरी मंजिल पर आकर भाइयों को ज़ीनत के मुतालिक बताया। इसके शौहर यानी अरीमा के बाप अमानुल्लाह ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली। दिली दिल में कहा, खसकम जहाँ पाक, मेरी बेटी के सर से बला टल गई है। इसके बरक्स दूसरे भाई इनायतुल्लाह को यानी हमाद के बाप को दुख पहुँचा था। मकतूला ज़ीनत से उसके खुफिया शर्मनाक ताल्लुकात थे। उन्होंने सोचा था कि अरीमा का बाप बूढ़ा है, दायमी मरीज़ है। इसकी मौत के बाद इनायतुल्लाह ज़ीनत से शादी करेगा तो इस मकान के ऊपरी हिस्से का भी मालिक बन जाएगा। ये बात भी जहन में थी कि बड़े भाई अमानुल्लाह ने मरने में देर की तो इसे किसी भी हथकंडे से ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। इधर इनायत की बीवी यानी हमाद की माँ ने दिली दिल में कहा, खुदा का शुक्र है कि ज़ीनत मर गई, नहीं तो मियाँ साहब इस मकान पर कब्ज़ा जमाने के लिए उसे मेरी सौकन बना देते। अमानुल्लाह अपने मकान का वो ऊपरी हिस्सा अरीमा के नाम करना चाहता था और ज़ीनत उसे ऐसा करने से रोकती रही थी, मगर अब वो रोकने टोकने वाली हराम मौत मर चुकी थी। इनायतुल्लाह की बीवी ने कहा, अब तो ज़ीनत मट्टी में मिल जाएगी। इसके ज़रिए ऊपरी हिस्से पर कब्ज़ा जमाने का ख्वाब भी मट्टी में मिल गया है। सीधा सा रास्ता यही है कि अरीमा को किसी तरह अपनी बहू बना लिया जाए। जो चीज़ सीधी तरह हासिल नहीं होती, इसे टेढ़े रास्ते से या मुजरिमाना हथकंडों से हासिल किया जाता है। पहले ये मंसूबा था कि अमानुल्लाह किसी तरह मर जाए और ज़ीनत को बीवी बनाकर उसके शौहर का हिस्सा हासिल किया जाए। आइंदा मुजरिमाना सोच ये थी कि अरीमा बहू बनने पर राज़ी ना हुई तो इसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। यूँ इसकी मौत के बाद बड़े भाई का हिस्सा बाकी दोनों भाइयों में तकसीम हो जाएगा। एक मकान हो या मुल्क हो, इस पर कब्ज़ा जमाने और इक़्तिदार हासिल करने के लिए तरह तरह की कमीनगी से गुजरना पड़ता है। उधर तीसरे भाई बशारत ने अपने भाई इनायतुल्लाह की बीवी को यानी अपनी भाभी को शीशे में उतारा था,
یہ پلاننگ کی تھی کہ عنایت اللہ کو اوپر پہنچایا جائے، پھر بھابھی بیوہ ہوگی تو وہ دیور اس سے شادی کرے گا۔ اس طرح اوپر سے نیچے تک وہ پورا مکان بشارت کی ملکیت بن جائے گا۔ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بے حس، بے غیرت اور خود غرض کیوں ہو گئے ہیں۔ دہشت گرد، خودکش حملے، اندھا دھند فائرنگ اور بم دھماکے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی فنا سے اپنی بقا کا سامان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ نہیں مریں گے، وہ تو دوسروں کی زندگی سے کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آشیانے کی نچلی منزل میں بارود کا ذخیرہ تھا، وہاں تینوں بھائی جانے انجانے میں اپنی اپنی موت کا سامان کر چکے تھے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت اس ذخیرے میں آگ لگ سکتی تھی۔ ابھی وہ ایک دوسرے کے قدموں تلے بارود بچھانے کی سازش میں مصروف تھے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھنے اور کھلے ذہن سے سمجھنے کی بات ہے۔ امان اللہ نے اپنی بیٹی سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر پنچ کیے۔ دوسری طرف سجاد نے اپنے فون پر نمبر پڑھتے ہوئے اریما سے کہا، تمہاری ستیلی ماں پھر کال کر رہی ہے۔ وہ بولی، پلیز آپ بات نہ کریں، فون مجھے دے دیں۔ اس نے فون لے کر کان سے لگایا اور پھر کہا، ہیلو امی۔ باپ کی آواز سنائی دی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا ابو؟ پتہ نہیں کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ تمہارے دونوں چچا پولیس کی کارروائیوں سے نمٹ کر اس کی آخری رسومات ادا کریں گے۔ وہ جیسے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولا، مرنے والی کے اعمال اس کے ساتھ گئے۔ میں مطمئن ہوں کہ تمہارے سر سے ایک بدترین بلا ٹل گئی ہے۔ ہاں، اس کے اعمال اس کے ساتھ گئے، مگر اب آپ اس سے نفرت نہ کریں، اس کے خلاف کچھ نہ بولیں ابو۔ اچھی بات ہے، کچھ نہیں بولوں گا۔ تم بتاؤ کہاں ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جس مہربان کے ساتھ ہو اس کی فیملی میں جا کر رات گزار لو۔ صبح حالات موافق ہوں گے تو چلی آنا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ ابھی سجاد صاحب کے ساتھ ان کی فیملی میں جانے والی تھی، مگر اب نہیں جاؤں گی۔ ہمارے گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے، میں جلدی گھر پہنچنے کی کوشش کروں گی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے فون بند کر کے سجاد سے کہا، زینت بیگم کا مرڈر ہو گیا ہے۔ وہ ذرا چپ رہا، پھر بولا، ابھی چند گھنٹے پہلے وہ فون پر چیخ رہی تھی، مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ نہ وہ جانتی تھی، نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ اسے ہمیشہ کے لیے چپ لگ جائے گی۔ یہ زندگی کیا ہے، کچھ بتائے بغیر اچانک ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بڑی بے وفا ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، بعض لوگوں کی موت پر سمجھ میں نہیں آتا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے تو کیسے؟ وہ دعاؤں کے قابل نہیں ہوتے اور ہمارا ظرف کہتا ہے کہ انہیں بد دعا نہ دی جائے۔ اریما نے کہا، پلیز مجھے کسی طرح گھر پہنچا دیں۔ وہ دونوں تقریباً 2 گھنٹے سے اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پی تھی، اس کے بعد چائے پیتے وہ باتیں کرتے رہے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے گہری شناسائی اور اپنائیت محسوس کر رہے تھے۔ سجاد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی مام ڈیڈ سے ملاؤں، اس بہانے کل تک تمہارا ساتھ رہے گا۔ وہ بولی، ہم آج کے بعد بھی ملتے رہیں گے، ابو وہاں تنہا ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ بے شک، راستے میں رکاوٹ نہ رہی تو میں تمہیں تمہارے گھر کے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ سجاد نے ویٹر کو بلا کر کھانے کا بل ادا کیا، پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔ وہاں ایک نئی پریشانی ان کی منتظر تھی۔ انہوں نے اپنی کار سروس روڈ پر کھڑی کی تھی، مگر اب وہ وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوٹل کے باہر چاندنی سی بچھی ہوئی تھی، وہاں کچھ لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے۔ سجاد نے ان کے پاس آ کر پوچھا، یہاں ایک کار کھڑی ہوئی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی؟ ایک شخص نے کہا، ہاں، ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے 3 افراد اس میں بیٹھ کر گئے ہیں۔ دوسرے شخص نے پوچھا، کیا وہ آپ کے ساتھی تھے؟ نہیں، وہ کار میری ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے۔ ایک شخص نے کہا، مگر وہ تو بڑی آسانی سے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے تھے، کیا آپ نے اسے لاک نہیں کیا تھا؟ میں نے اسے اچھی طرح لاک کیا تھا۔ پھر تو آپ کی کار گئی۔ ہوٹل کا ایک ملازم کھانے کی پلیٹیں اٹھا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا تم کار لے جانے والوں کو پہچانتے ہو؟ ملازم نے کہا،
हाँ, उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए थे और कहा था कि कोई इस कार के बारे में पूछे तो कहना कि हम इसे वापस ले आएंगे, मगर वापसी में ज़रा देर होगी। बाहर इन मर्दों के दरमियान 3 खवातीन भी थीं। इनमें से एक बूढ़ी खातून ने सज्जाद से कहा, कहने की बातें हैं, कोई चोरी का माल वापस करने नहीं आता। होटल के मुलाजिम ने कहा, मगर वो चोर नहीं हैं, वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, इस होटल में आते जाते रहते हैं, वो ज़रूर आएंगे। फिर मुलाजिम ने कहा, आप अंदर बैठें, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो चोरी डकैती करने वाले बदमाश नहीं हैं, मुझे 150 रुपये देते रहते हैं। इसने सर्विस रोड पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये इनकी कार है, वो इसे ले जाने और आपकी गाड़ी वापस करने ज़रूर आएंगे। अरीमा और सज्जाद ने एक दूसरे को बेबसी से देखा। फिर होटल के अंदर आकर इसी मेज़ के अतराफ बैठ गए। सज्जाद ने कहा, और कोई चारा नहीं है, हम पैदल कहीं जा नहीं सकते, इंतज़ार करना होगा, ये देखना होगा कि वो शरीफ घराने के दौलतमंद चोर हम पर मेहरबानी करने वापस आएंगे या नहीं। अरीमा ने कहा, यह हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? कितनी हैरानी की बात है कि शरीफ घराने के अफराद भी चोरी की वारदातें करने लगे हैं। बेशक उन्होंने आर्जी तौर पर हमारी कार चुराई है, लेकिन ज़मानत के तौर पर अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ गए हैं। इनकी कोई मजबूरी होगी, मजबूरी ही चोरी पर मजबूर करती है। मायूसियों और महरूमियाँ ही लोगों को जुराइम की तरफ ले जाती हैं। वहाँ बड़े से टीवी स्क्रीन पर मुल्की हालात के मुतालिक खबरें नश्र की जा रही थीं। चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों और छोटे बड़े इलाकों में आग लग रही थी, लहू उछाला जा रहा था। जजों को, वकला और अदलिया को पहले ही मफलूज कर दिया गया था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा था। मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम मुजरिमों को खुली छुट्टी दे दी गई थी। ये मुल्क खुदादाद पहली बार तमाम कवानीन से बालातर होकर अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने का तमाशा सारी दुनिया को दिखा रहा था। शेरी, विक्की और कामी, 3 बेलगाम रईसज़ादे सज्जाद की कार ले गए थे। कहा जाता है कि गुर्बत जुराइम को जन्म देती है, जबकि वो तीनों करोड़पति और अरबपति बाप के बेटे थे। सिर्फ गुर्बत और बेरोज़गारी ही नहीं, बेइंतहा दौलत की फरावानी भी इंसान को मुजरिम बना देती है। गरीब अपने बदतरीन हालात से मजबूर होकर घरों में चोरियां करते हैं, जबकि बड़े लोग बैंकों और कौमी ख़जानों को लूटते रहते हैं। गरीब अफराद निचले तबके में निचली कमीनगी से कत्ल व गारतगरी और अगवा की वारदातें करते हैं, और मुअज़्ज़िज़ कहलाने वाले अमीर तरीन लोग किराए के कातिलों से ऐसी वारदातें कराते हैं। सीधी सी बात है, छोटे अपने बड़ों की तकलीद करते हैं। अगर बड़े लोग मज़ीद बड़ा बनने की हविस में जुर्म ना करें तो गरीब दिन ब दिन और ज़्यादा गरीब नहीं बनेंगे और ना ही इनसे कोई जुर्म सरजद होगा। शेरी, विक्की और कामी जैसे रईसज़ादे मुल्क से बाहर सैर व तफरीह की गर्ज से जाते आते रहते थे। बचपन से एक्शन और मार-धाड़ से भरपूर फिल्में देखते रहे। फिर जवान होने के बाद यूरोप और अमेरिका के शराब खानों, कहवा खानों और कुमार खानों में दौलत लुटाते हैं। इनका जी चाहता है कि मस्ती में आकर खूब शोर मचाएं। वो कान फाड़ देने वाली आवाज़ों के साथ ऑर्केस्ट्रा सुनते और रक्स करते हैं। साइलेंसर हटाकर शोर मचाती हुई स्पोर्ट्स बाइक पर दंदनाते फिरते हैं। खुशी की तकरीबात में धमाके करने वाली आतिशबाजी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इनसे पूछा जाए तो कहते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने तौर पर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वो तीनों रईसज़ादे अपने तौर पर लाइफ एंजॉय करने के लिए सज्जाद की कार चुरा कर ले गए थे। उन्होंने चोरी की भी थी और नहीं भी की थी। वहाँ ये पैगाम छोड़ दिया था कि कार वापस कर दी जाएगी। वैसे तो वो अपनी गाड़ी ले जा सकते थे, लेकिन इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। उन्होंने तय किया था वापसी में इसके लिए पेट्रोल लाएंगे और सज्जाद की गाड़ी की टंकी भी फुल करा देंगे। शहरी कार ड्राइव कर रहा था। विक्की और कामी अपनी अपनी गन चेक कर रहे थे। शहर का कोई भी पेट्रोल पंप खुला हुआ नहीं था। वो पहले अपनी कोठी में आए, वहाँ सज्जाद की कार की टंकी फुल की, फिर अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल से भरा हुआ एक कैन इसकी डिक्की में रख लिया। विक्की ने कहा, आधी रात हो रही है, क्या सलमान इतनी रात को हमसे मिलने के लिए कोठी का दरवाज़ा खोलेगा? शेरी ने पूछा।
تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ ہمیں اپنی کوٹھی کے اندر نہیں بلائے گا؟ کامی نے کہا، پہلے وہ ہمارا بہترین دوست تھا، جب سے جھگڑا ہوا ہے تب سے برائے نام دوستی رہ گئی ہے۔ وہ اتنی رات کو ملنے سے انکار کر سکتا ہے، ہم اس کے انکار کو اقرار میں بدل دیں گے، یہاں سے چلو تو صحیح۔ وہ تینوں کار میں آ کر بیٹھ گئے، سلمان کی کوٹھی کی طرف جانے لگے۔ وہ پہلے 4 یار تھے، اب 3 رہ گئے تھے۔ ازل سے زن اور زمین کے سلسلے میں فسادات ہوتے آئے ہیں، ان کے درمیان بھی ایک معشوقہ کے سلسلے میں انبن ہو گئی تھی۔ سلمان ان کی چنڈال چوکڑی سے نکل گیا تھا، اپنی حسین بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہا تھا، ان کی محفلوں اور رنگ رلیوں سے دور رہنے لگا تھا۔ وہ سب اخلاقی قدروں کو نہ سمجھتے تھے اور نہ سمجھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کی گرل فرینڈ کا آپس میں تبادلہ کر لیا کرتے تھے۔ اگر ایک دوست کا دل اپنی گرل فرینڈ سے بھر جاتا تو وہ دوسرے دوست کی گرل فرینڈ کو اپنا لیتا اور اپنی والی کو راضی خوشی دوسرے دوست کے پاس بھیج دیتا۔ سلمان بھی ان کی طرح من موجی تھا، ان کے ساتھ لڑکیوں کے معاملے میں شیئر کیا کرتا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی زندگی میں شبینہ آئی۔ وہ پہلی بار دوستی کے معاملے میں سنجیدہ ہو گیا۔ پہلی بار دل نے کہا، کوئی ایسی لڑکی ہو جو صرف اسے چاہتی ہو، صرف اس کی ملکیت ہو، کوئی اور اسے ہاتھ نہ لگائے۔ شیری نے کہا، کل شام میں نے تمہیں سی وی میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وکی نے کہا، اور شاید پرسوں شاپنگ مال میں بھی اسی کے ساتھ تھے، لگتا ہے کہ اسے ہم سے چھپاتے پھر رہے ہو۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کامی نے کہا۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اسے ہم سے کیوں نہیں ملاتے؟ وہ بہت ہی شرمیلی ہے، ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا ہم شریف گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیری نے کہا، ہم سبھی لائف انجوائے کرتے ہیں، تم شرافت کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوگی، میرے سوا کسی سے دوستی نہیں کرے گی۔ صاف کیوں نہیں کہتے، تم اپنا پھل ہمیں چکھانا نہیں چاہتے؟ یہی سمجھ لو، دراصل میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، ڈیڈی بھی اسے بہو بنانا چاہتے ہیں، ممی کی وفات کے بعد وہ تنہا رہ گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ بہو آئے، بچے ہوں تو ان کا بھی دل بہلتا رہے۔ انہوں نے تو اس ماہ کے آخر میں شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی ہے۔ شیری نے کہا، بات اتنی دور تک پہنچ گئی اور تم ہم سے چھپاتے رہے۔ بہرحال ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جب ہوگی تب دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا، فضول باتیں نہ کرو، وہ میری ہونے والی وائف ہے، میرے بچوں کی ہونے والی ماں ہیں۔ کامی نے کہا، اب تک ہمارے پاس جتنی لڑکیاں آتی جاتی رہی ہیں انہوں نے بھی شادیاں کر لی ہیں، گھر بسا لیے ہیں اور اب اپنے شوہروں کے لیے بچے پیدا کر رہی ہیں۔ وکی نے کہا، ہماری زندگی میں جو بھی لڑکیاں بیویاں بن کر آئیں گی وہ کون سی پارسا ہوں گی؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے شادی سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ لائف انجوائے نہیں کی ہے؟ شیری نے کہا، یار، شادی اور بچے کے معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جیسی بھی ہو، اگر بیوی بن کر آ گئی ہے تو اس کے بعد دوسرے کے پاس نہ جائے، صرف ہمارے لیے ہمارے بچے پیدا کرتی رہے۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں اپنے دستور کے مطابق ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہیے۔ سلمان نے کہا، ہرگز نہیں، شبینہ کا تعلق نہ ہماری بے حیا سوسائٹی سے ہے، نہ میں ہونے دوں گا، وہ صرف میری ہے، صرف میرے بچوں کی ماں بنے گی۔ اس کے انکار پر بات بڑھ گئی، ان کے درمیان کشیدگی بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے سلمان سے فون پر بھی رابطہ ختم کر دیا، شادی کے موقع پر اسے مبارکباد بھی دینے نہیں گئے۔ اب تقریباً 7 ماہ کے بعد آدھی رات کو اس کی کوٹھی کی طرف جا رہے تھے۔ کامی نے اپنے دوستوں سے کہا، تم دونوں نے اس کی بیوی کو دیکھا ہے؟ بڑی تعریفیں کرتے ہو، کیا واقعی وہ بہت زیادہ حسین ہے؟ وہ صرف حسین ہی نہیں مائی ڈیئر، بہت ہی خوبصورت ہے، آج تو مزہ آ جائے گا۔ شیری نے کہا، اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا کر ہی رہیں گے۔ وکی نے کہا، وہ سالہ بڑی شرافت دکھا رہا ہے، اسے شجر ممنوعہ بنا کر رکھتا ہے، اسے فون تو کرو، معلوم تو ہو سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ ایک نے فون نکال کر نمبر پنچ کرتے ہوئے کہا، ہم سونے والوں کو جگانا جانتے ہیں۔ رابطہ ہونے پر وہ سلمان کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے۔ وکی نے کہا، ہیلو سلمان، میں وکی بول رہا ہوں، کیا تم سو رہے ہو؟ نہیں، جاگ رہا ہوں۔
بائی دا وے اتنے عرصے بعد میری یاد کیسے آ گئی؟ صرف مجھے ہی نہیں، تمام فرینڈز کو تمہاری یاد آتی رہتی ہے۔ ہم خود پر جبر کرتے ہیں کہ تم سے نہ ملیں، مگر دیرینہ یار ہیں نا، ہمیشہ کے لیے چھوٹ نہیں سکتے، اس لیے تم سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ملنے آئے ہو؟ اس وقت؟ کہاں ہو؟ تمہاری کوٹھی کے سامنے شیری اور کامی بھی میرے ساتھ ہیں، لو بات کرو۔ شیری نے اس سے فون لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، میں سوری نہیں کہوں گا، کیونکہ دوستوں میں خواہ کتنی ہی رنجش پیدا ہو جائے وہ کسی طرح کا ایکسکیوز نہیں کرتے، بس فوراً گلے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا خلوص و محبت دیکھو، ہم تمہارے دروازے پر آئے ہیں۔ سلمان نے کہا، میرے دل میں بھی کوئی میل نہیں ہے، میں بھی تم لوگوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ جسٹ اے منٹ، ابھی چوکیدار سے کہتا ہوں وہ دروازہ کھولے گا۔ ان تینوں نے کھڑکیوں سے جھانک کر آس پاس دیکھا۔ دور تک کوٹھیوں کے باہر روشنی تھی، مگر ویرانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان کوٹھیوں کے چوکیدار بھی اندر کہیں کیبنوں میں چھپے بیٹھے تھے، واردات کرنے والوں سے چھپ کر ہی نمٹ سکتے تھے۔ چوکیدار نے آ کر انہیں سلام کیا۔ شیری نے کہا، بڑا دروازہ نہ کھولو، ہماری کار باہر ہی رہے گی، ہم تمہارے صاحب سے ملنے کے بعد ابھی واپس چلے جائیں گے۔ چوکیدار نے دوسرا سائڈ والا دروازہ کھول دیا، وہ تینوں اندر آ گئے۔ وکی نے چوکیدار سے پوچھا، تم اکیلے ہو یا اور بھی ملازم ہیں؟ وہ بولا، وہ سب تو شام کو چلے جاتے ہیں، صرف ایک ملازم کوٹھی کے اندر رہتا ہے، لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ وہ بھی چھٹی لے کر چلا گیا ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پورچ کے سائے میں آ گئے۔ وہاں روشنی کم تھی، وکی کے ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا، تم یہاں تنہا ہو، ایک گن لیے پھر رہے ہو، کیا واردات کرنے والوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ صاحب میں دیکھ بھال کر کسی کو اندر آنے دیتا ہوں، کوئی اجنبی ہو تو گیٹ نہیں کھولتا، دیوار پھڑک کر آنے والوں سے چھپ کر نمٹ سکتا ہوں۔ وکی نے کہا، لوگ بڑی تیاریاں کرتے ہیں، پھر بھی موت آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے چوکیدار کو گولی مار دی۔ وہ پورچ میں ایک گاڑی کے پاس گر کر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے اس کی لاش کو گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈال دیا، پھر بیرونی دروازے پر آئے اور بیل کے بٹن کو دبایا۔ سلمان نے دروازے پر آ کر فش آئی سے آنکھ لگا کر انہیں دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر دروازہ کھول دیا۔